बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कुछ समझ आ रही है आपको कि हाउ वी रिड्यूस आवर गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इनटू canonical form, and if we have a certain type of partial differential equation, for example if it is hyperbolic or if it is parabolic, then how we can reduce them into the canonical form. लास्ट टाइम और उससे पिछले लेक्चर में हमने दो एग्जांपल्स की थी इसी चीज़ को समझने के लिए कि हम और कैसे रिड्यूस करते हैं अपने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को। और मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ आपसे कि आप इसके ऊपर कुछ मज़ीद एक्सरसाइजेज जो मैं भी आपको दूंगा, काफ़ी सारे एक्सरसाइजेज में दूंगा आपको, लेकिन आप इंटरनेट के थ्रू आपको जो मैंने बुक्स आपको पहले दिन आपको बताई हैं उन बुक्स को लेके वहाँ से आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे जी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये कैलकुलेशन आपको ये ऐसे नहीं होता कि आप ये कहो कि अच्छा समझ आ रही है सो लेक्चर इज़ रेडी। नो, lecture is not ready yet until you have to implement the theory for at least 2-3 examples. आप जब तक examples जो नहीं देखोगे उस वक्त तक आप थ्योरी की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेटर नहीं होगी जी। ठीक है, we focused on the last lecture on the parabolic equations ji, how we reduce the parabolic equation into canonical form ji, or then we did some examples, and here this is the result which we discussed, but the main part is in the last lecture is canonical form for parabolic equations ji. So today's lecture is I will focus on again the reduction of a general second order partial differential equation into a canonical form, and then I will discuss the basic result which will show me that the discriminant of the new equation which is in xi and eta has the equal sign with the discriminant which of the given partial differential equations. So ये रिजल्ट इम्पॉर्टेंट है और मैं पिछले 3 लेक्चर से बार बार इस रिजल्ट को लिख रहा हूँ। ठीक है, तो देन इन नंबर 2 जो मेन फोकस है हमारा इस लेक्चर का वो है एलिप्टिक फॉर्म फॉर कैनोनिकल फॉर्म फॉर elliptic equations जी। देन ऑफ कोर्स वी विल डू सम काइंड ऑफ एग्जांपल्स जो कि आपकी इस थ्योरी को बेटर अंडरस्टैंड करेंगे जी। So this is the second order partial differential equation which is given partial to u over partial x square plus 2b partial to u over partial x partial y and plus c partial to u over partial y square plus f into xy partial u by partial x of partial u by partial y is equal to 0 can be reduced in the following canonical form. और ये हमने जब ये टॉपिक शुरू किया था तो उसी दिन हमने इसको रिड्यूस करना सीख लिया था कि हाउ वी रीच फ्रॉम दिस गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन टू दिस वेयर a bar is given in this shape, b bar is given in this shape and c bar is given in this shape. So then we have a very important result that इस इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट है और इस इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट है इनके साइन सेम रहेंगे। फॉर एग्जांपल इफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस इज पॉजिटिव देन द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस वेरिएबल इज दिस इक्वेशन इज अगेन पॉजिटिव जी। सो दिस इज द रिजल्ट b bar square minus a bar c bar is equal to b square minus ac partial xi over partial x partial eta over partial y minus partial xi over partial y and partial eta over partial x square. And of course when a, b and c are not all equal to 0, then at the same time then the transformation of independent variables does not change the type of the equation. Like आप xi eta से xy से xi eta में जा रहे हो तो ट्रांसफॉर्मेशन चेंज नहीं हो रही जी। ठीक है, सो ये क्या चीज़ थी, ये फिर मैं आपको बता दूं, ये जैकोबियन था कि जैकोबियन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, और ये कंडीशन है कि वो मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए, और क्योंकि इसका स्क्वायर मौजूद है तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा जी। Therefore the sign of the discriminant does not change either we are in xy coordinates or in xi eta coordinates. So students, after a small review of the last lectures, we come to the
the main part of today's lecture is how we reduce the elliptic equation in canonical form. So in elliptic equation, the discriminant b square minus ac must be negative if the coefficients a, b and c are variables and depending on x and y are their constants. यानी वो कुछ भी हो सकते हैं, चाहे वो वेरिएबल्स हों. अगर वो वेरिएबल्स हैं तो वो एक सर्टेन कंडीशन उसको सेटिस्फाई करेंगे, और अगर वो वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट्स हैं, तो वी और उस कांस्टेंट के साथ वो डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो रहा है, या उन वेरिएबल्स के साथ वो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो रहा है, not zero, sorry, the negative, then we can find out the reduced canonical form with the following characteristic equation. ये equation हमारे पास है, which is the solution of the characteristic curve, which is not real. Why? Because this is b square minus ac is negative. So in the square root, if I have a negative sign, then it gives me iota. So this is an imaginary curve, characteristic curve, and this is basically a slope of the imaginary curve. So then if this is a solution of that imaginary curve, then the solution of this equation is, let's say phi of xy is equal to c. A capital phi से मैं जाहिर कर रहा हूँ, phi of xy is equal to c is the solution of this one. And of course then solution जो होगा वो भी दो पार्ट्स पे डिपेंड करेगा, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट. और स्टूडेंट्स आपको पता है कि रियल पार्ट वो होता है जो विदाउट आयोटा हो, और इमेजिनरी पार्ट वो होता है जो विद आयोटा हो. ठीक है, तो ये तो उसी को बता रहा है कि ये b square minus ac square root is imaginary. Therefore phi of xy can be written in the form phi 1 of xy minus plus iota phi 2 of xy is equal to c. So स्टूडेंट्स इसमें देखें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये चीज़ है आपके पास, और ये चीज़ कैसे आती है. ये आप अगर हाइपरबोलिक लेक्चर को, जिसमें हमने हाइपरबोलिक इक्वेशन को रिड्यूस किया था, उस लेक्चर को अगर आप जाके देखें तो उस लेक्चर में, मेरा ख्याल है इससे 2 लेक्चर पहले, उसमें हमने ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस डेवलप की थी. ठीक है, by putting a bar is equal to 0 and by putting c bar is equal to 0, तो समथिंग लाइक दैट हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वहाँ से डेवलप की थी. तो लेकिन वो रियल कर्व की थी, तो ये एक इमेजिनरी कर्व हो रही, क्योंकि b square minus ac is less than 0. This implies b square minus ac square root is imaginary. Therefore phi of xy is of two parts, phi 1 of xy plus iota phi 2 of xy is equal to c. Now I assume that the real part is equal to xi of xy, and the imaginary part phi of 2 is equal to eta of xy. So in this case my the given solution will become something like that: phi of xy is equal to xi xy plus iota eta xy. So phi of xy मेरे पास ये आ गया, और ये phi of xy कैसे मेरे पास आया था कि जब मैंने कहा था कि ये phi of xy इस चीज़ का सोल्यूशन है, और ये इक्वेशन मेरे पास कैसे आई थी. रिमेंबर, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, ये इक्वेशन मेरे पास ऐसे आई थी जब मैंने a बार को 0 पुट किया था, और उसके बाद फिर मैंने कहा था कि xi x और xi y जो है, xi x और xi y में मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली थी, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैंने सॉल्व किया था, मेरे पास एक आंसर आया था, और देन मैंने xi को अलाउंड मैंने स्लोप निकाली थी dy by dx, दिस इज इक्वल टू माइनस xi x और xi y. तो फिर मैंने xi x और xi y की वैल्यूज वहाँ से लेके सब्स्टिट्यूट की थी, तो मेरे पास ये इक्वेशन आई थी. तो बेसिकली ये phi of xy comes from the fact that a bar is equal to 0. So since phi of xy is the solution of equation dy over dx is equal to b minus b square minus ac root over a, which basically comes by putting a bar is equal to 0. In other words, phi of xy is the solution of this equation, a of partial phi over partial x whole square plus 2b of partial phi over partial x partial phi over partial y plus c of partial phi over partial y whole square is equal to 0. Now if I substitute the values of phi at xi plus iota eta in this equation, then we get some interesting results, which I show you how I can substitute these values here in this equation and then simplify it.
this is a into partial phi by partial x whole square plus 2b into partial phi by partial x partial phi by partial y plus c into partial phi by partial y square is equal to 0। ये बेसिकली क्या आता है, ये a बार इज इक्वल टू 0 को हमने रखा है, तो a बार की वैल्यू ये थी। ठीक है, मैं बार बार अब स्लाइड्स पे पीछे हट नहीं जाऊंगा, मैं मेरे पास नोट्स रखे हुए मैं यहाँ से देख कर लिख रहा हूँ ताकि हमारी जो टाइम है वो बचत होता रहे इस तरह से। ठीक है, सो फाई को मैंने लिया था एक्साई प्लस आयोटा ईटा के लिए। नाउ आई हैव टू चेक दैट अगर फाई ऐसा सोल्यूशन है तो क्या ये भी इससे सोल्यूशन है? ऑफ कोर्स होने तो चाहिए, अगर ये है तो इसको सेटिस्फाइड हो रहेंगे। plus 2b and xi plus iota eta and xi plus iota eta, this is y, not eta ji, so plus c partial partial y and this is xi plus iota eta whole square is equal to 0 जी। आप इसको देखोगे तो ये पार्शियल प्लस पार्शियल ईटा बाई पार्शियल एक्स होल स्क्वायर प्लस 2b पार्शियल एजाई बाई पार्शियल एक्स प्लस आयोटा पार्शियल ईटा बाई पार्शियल एक्स इंटू पार्शियल एजाई और पार्शियल वाई प्लस आयोटा पार्शियल ईटा और पार्शियल वाई प्लस सी, और इसको जब मैं ओपन करता हूँ तो ये आ जाता है पार्शियल एक्साई और पार्शियल वाई प्लस आयोटा पार्शियल ईटा और पार्शियल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 जी। सो लुक एट दिस, ये स्क्वायर है, स्क्वायर को मैं ओपन करूँगा तो दिस इज समथिंग लाइक दैट पार्शियल एक्साई ओवर पार्शियल एक्स होल स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर पार्शियल ईटा बाई पार्शियल एक्स होल स्क्वायर प्लस 2 आयोटा पार्शियल एक्साई ओवर पार्शियल एक्स पार्शियल ईटा ओवर पार्शियल एक्स। ठीक है, देन ब्रैकेट क्लोज फॉर a एंड देन 2b partial xi over partial x partial xi over partial y plus iota partial xi over partial x partial eta over partial y plus iota partial xi over partial y partial eta over partial x, and then the last term is plus iota square partial eta over partial x partial eta over partial y plus c by opening this square partial xi over partial y whole square plus iota square partial eta over partial y whole square plus 2 iota partial xi over partial y and then partial eta over partial y is equal to 0 जी। सो स्टूडेंट्स इनको मैं थोड़ा सा सॉल्व मजीद कर सकता हूँ। ये आयोटा स्क्वायर माइनस है तो माइनस से पार्शियल एक्स होल स्क्वायर प्लस 2 आयोटा ए पार्शियल एक्स आई और पार्शियल एक्स पार्शियल ईटा और पार्शियल एक्स प्लस 2b partial xi over partial x partial xi over partial y plus 2 iota b partial xi over partial x partial eta over partial y and then plus 2 iota b partial xi over partial y partial eta over partial x minus iota square minus and partial eta over partial x partial eta over partial y, and this of course 2b is also there plus c partial xi over partial y whole square minus
पार्शियल ईटा और पार्शियल वाई होल स्क्वायर प्लस 2 आयोटा सी partial xi और partial y and partial eta or partial y is equal to 0. So comparing real coefficient on the both sides and the imaginary coefficient on the both sides. So इस तरफ आप देख लो तो 0 को मैं 0 + 0 आयोटा भी ले सकता हूँ, तो रियल पार्ट को जब मैं कंपेयर करूँगा तो इक्वल टू 0 होंगे और इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल टू 0 होंगे जी. सो रियल पार्ट पार्शियल xi और पार्शियल x होल स्क्वायर माइनस मैं अगर आप मुझे अलाउ करो तो मैं पॉजिटिव टर्म्स को पहले लिखूंगा. सो दिस इज बेसिकली प्लस 2b, मैं एक स्टेप बचा रहा हूँ, पार्शियल xi और पार्शियल x, पार्शियल xi और पार्शियल y एंड देन पॉजिटिव टर्म प्लस c पार्शियल xi और पार्शियल y होल स्क्वायर. Okay, and then minus common लेते a of partial eta by partial x whole square minus sign this thing जी, और then minus plus 2b partial eta और partial x, partial eta और partial y and then minus partial eta और partial y whole square and then this is equal to 0 जी, क्योंकि रियल पार्ट इस 0 का भी 0 है और इसका भी 0. ये क्या है स्टूडेंट्स? I can call this a bar minus this is c bar is equal to 0. This implies a bar is equal to c bar जी. सो यहाँ से मुझे क्या आइडिया हो रहा है जी कि मैं बेसिकली मैंने क्या किया था कि मैंने कहा था कि फाई जो है वो सोल्यूशन है इस होल कर्व का, इस पार्शियल फाई और पार्शियल एक्स होल स्क्वायर प्लस 2b पार्शियल फाई और पार्शियल एक्स, पार्शियल फाई और पार्शियल वाई एंड देन c इसके इक्वल था. तो मैंने यहाँ से कहा था आपको कि अगर मैं फर्स्ट टर्म को xi ले रहा हूँ और सेकंड टर्म को ईटा ले रहा हूँ तो मेरे पास क्या आंसर आएगा? तो वो मेरे पास आंसर ये आ रहा है कि a बार इज एग्जैक्टली इक्वल टू c बार जी. ठीक है, और सिमिलरली जब मैं इसे इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करूंगा, इमेजिनरी पार्ट्स मींस एक ये आ गया, एक ये आ गया, सॉरी ये काटा नहीं मैंने, ये ऐसे आ गया एंड देन एक ये आ गया और एक ये आ गया जी. अगर आप इनको देखोगे तो ये आपके पास b बार बनेगा जी, तो ये भी इक्वल टू 0 आ गया जी. ठीक है, तो a bar is equal to c bar and from this result we have a bar is equal to c bar and b bar is equal to 0 जी. so अगर b bar is equal to 0 है और a और c इक्वल हैं तो this means यहाँ पे मैं एक छोटा सा एक टर्म लिख रहा हूँ कि अगर ये डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ विद दिस ए बार, ये ए बार इसके लिए था फाई फंक्शन में, अब ये ए बार और सी बार ईटा और एक्साई फंक्शन में जी. ठीक है, तो ये आपके पास आ गया बी स्क्वायर माइनस ए बार सी बार इज इक्वल टू दिस थिंग इज 0 माइनस ए और सी आपस में इक्वल है तो ये ए बार स्क्वायर बन जाएगा. तो ये टर्म पॉजिटिव हो रही है और ये नेगेटिव इसको लेस कर देगा जी. ठीक है, सो स्टूडेंट्स आपने देखा कि अगर हम एक्साई और फाई को इक्वल टू एक्साई प्लस आयोटा ईटा लें तो हमारे पास आफ्टर स्मॉल कैलकुलेशन वी ऑब्टेन ए बार इज इक्वल टू सी बार एंड बी बार इज इक्वल टू 0 जी. और ये जो इक्वेशन थी ये रिड्यूस फॉर्म ऑफ इक्वेशन थी, कैनोनिकल इक्वेशन जो हमारे पास मौजूद थी, ओरिजिनल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की. तो ये यहाँ से हम ए बार को सी बार ले लिया और 2 बार ये 0 हो गई वैल्यू और सी बार को ए बार ले लें तो ये ए बार कॉमन लेके तो डिवाइड कर दे तो ये फंक्शन को फंक्शन रिप्लेस हो जाएगा, एफ रिप्लेस हो जाएगा साई के साथ, तो एक अनदर फंक्शन आ जाएगा. ठीक है, विच रिड्यूसेस टू दिस फॉर्म. तो एलिप्टिक इक्वेशन आपको हमेशा इस फॉर्म में मिलेंगी, पार्शियल टू यू और पार्शियल xi स्क्वायर प्लस पार्शियल टू यू और पार्शियल ईटा स्क्वायर. ठीक है,
तो आप देख सकते हो कि वो जो इक्वेशन थी उसके साथ तक ए और बी कोफिशिएंट थे वो सारे ख़त्म हो गए यहाँ से, और ये आपके पास रिड्यूस फॉर्म ऑफ एलिप्टिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। सो एग्जांपल्स में बेसिकली मैं फोकस करूँगा इन दो एग्जांपल्स को। द फर्स्ट वन इज आप देख सकते हैं इट्स वेरी इजी, पार्शियल टू यू ओवर पार्शियल एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर पार्शियल टू यू ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर जी। And the second one is 1 plus h square partial to u over partial h square, and then plus 1 plus y square partial to u over partial y plus h partial u over partial h plus y partial u by partial y is equal to 0 जी। तो इन दोनों इक्वेशंस को मैं लेके चलूँगा। आप देखेंगे इनके कोफिशिएंट्स जो हैं वो वेरी कर रहे हैं, जिसका कोफिशिएंट कांस्टेंट है और इसका कोफिशिएंट वेरिएबल है और डिपेंड कर रहा है h के ऊपर। सिमिलरली इसका कोफिशिएंट डिपेंड कर रहा है h के ऊपर और इसका कोफिशिएंट डिपेंड कर रहा है y के ऊपर। तो हम यहाँ से इसका इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और अपने मेथोडोलॉजी को जो हमने सीखी है पिछले 2-3 स्लाइड्स में उसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट वी डिड और उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उस मेथोडोलॉजी की वो कैसे करनी है। ठीक है। So the example is something like that, partial to u over partial h square plus h square partial to u by partial y square is equal to 0 जी। यहाँ से आप देखेंगे a की वैल्यू क्या है जी 1, to b 0, c h square और of course फिर b की वैल्यू क्या है जी 0। तो मैं यहाँ से इसको देखूंगा तो b square माइनस ए सी क्या हो रहा है 0 माइनस 1 इंटू एच स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू माइनस एच स्क्वायर। अब एच चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एच दिस होल थिंग इज लेस देन 0 जी। सो इट इज elliptic इन नेचर जी। सो द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज elliptic इन नेचर जी। सो अब हम नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्या करेंगे, हम जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है इमेजिनरी कर्व की वो हम लेंगे dy बाई डी एच इज इक्वल टू बी माइनस square root of b square minus ac divided by a, and so we basically calculated two characteristic curves. So it's up to you which one you want to take, and I will take b plus h b plus square root of b square minus ac over ag. So you can take this the negative sign as well जी। So बल्कि ये आपका होमवर्क हो जाए। ठीक है। b प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी ओवर ए, वैल्यू सब्स्टिट्यूट की 0 प्लस 0 माइनस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1। सो दिस इज नथिंग बट माइनस एच स्क्वायर एंड दिस इज आयोटा एच जी। ठीक है जी। वेयर आयोटा क्या होता है जी स्क्वायर रूट ऑफ -1 जी। आयोटा आपको इसके बारे में बताइए। सो आपकी जो इक्वेशन आ रही है वो आ रही डी वाई बाई डी एच इज इक्वल टू आयोटा एक्स। इसको आप लिख सकते हो कि डी वाई इज इक्वल टू आयोटा एक्स डी एक्स जी ऑन इंटीग्रेशन y इज इक्वल टू आयोटा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी जी। लेट्स से इसको मैं सी कह देता हूँ क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ एक ही कर्व होगी। तो सी की वैल्यू जो होगी वो y माइनस आयोटा एच स्क्वायर बाई 2। सो यहाँ से आप देखो कि मैं ये जो मेरा सोल्यूशन आया है, लेट्स से दिस इज माय फाई ऑफ एक्स वाई y माइनस आयोटा एच स्क्वायर बाई 2, क्योंकि ये कर्व आई है ना मेरे पास एट फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू सी। सो दिस इज एन इमेजिनरी कर्व। तो इसमें जो ये पार्ट हो रहा है इसको मैं xi लूंगा और ये जो पार्ट हो रहा है इमेजिनरी पार्ट उसको मैं ईटा लूंगा। देयरफॉर xi इज इक्वल टू y एंड ईटा इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 जी। सो मेरे पास ये दो टर्म्स आ रही है xi y एंड ईटा इज इक्वल टू माइनस एच स्क्वायर जी। तो अब आपको बताइए कि जब मैं इसका डबल डेरिवेटिव लेता हूँ और वहाँ पे मेरे पास क्योंकि चेन रूल लग जाएगा तो पार्शियल ज़ाय पे पार्शियल एच आ जाएगा और पार्शियल ईटा पे पार्शियल एच और पार्शियल ईटा पे पार्शियल वाई पार्शियल एच। तो इनकी वैल्यूज मैं कैलकुलेट करूँगा कि ज़ाय वाई ज़ाय एच दिस इज इक्वल टू 0, ज़ाय वाई दिस इज इक्वल टू 1, ईटा एच माइनस एच एंड ईटा वाई 0।
और ये डबल डेरिवेटिव भी ऑफ कोर्स फिर 0 होंगे, सारे डबल डेरिवेटिव 0 0 जी। अब बेसिकली मैं क्या मैं चाह रहा हूँ जी, मैं किसी भी तरह से पार्शियल टू यू बाई पार्शियल एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ और पार्शियल टू यू बाई पार्शियल वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ जी। तो इनकी वैल्यूज मैं यहाँ पे दोबारा लिख लेता हूँ। सो एट xi एक्स इज इक्वल टू 0, एट xi y इज इक्वल टू 1, ईटा एक्स माइनस एक्स एंड ईटा y 0 जी। ठीक है जी। तो ये मेरे पास ये वैल्यूज हैं, ये मैं इनको यहाँ पे लिख लेता हूँ कार्नर पे, ताकि इन दिस स्लाइड में बार बार पीछे ना जाऊँगी। ठीक है। तो बेसिकली मेरा ऑब्जेक्टिव था कि मैं किसी तरह से पार्शियल टू यू बाई पार्शियल एक्स की वैल्यू देखना चाहूँगा। तो पार्शियल और पार्शियल एक्स इंटू पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स आई बाई पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल यू बाई पार्शियल ईटा बाई पार्शियल एक्स। और स्टूडेंट्स आप इस सारे मामले में इतने माहिर हो चुके हो कि अब मैं इसको मज़ीद एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि हम इसको कैसे डेरिवेट करते हैं। और पहला लेक्चर भी बेसिकली इन्हीं चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा था कि आपने कैसे पार्शियल डेरिवेट करना है, कैसे आपने चेन रूल लगाना है, कैसे टोटल डिफरेंशियल निकालना है, किस तरीके से आपने वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है जी। सो एट xi of x here is 0, so this term should be 0. We are left only with partial over partial x, partial u by partial eta and partial eta by partial x. This is minus h जी। so यहाँ पे u into v लग जाएगा जी। फर्स्ट हम इसको minus h as it is the derivative of this function and then the minus h derivative minus 1, ठीक है, और पार्शियल ओवर पार्शियल यू बाई पार्शियल ईटा जी। यू इंटू वी लग गया और दिस इज इक्वल टू नथिंग बट माइनस एट xi पार्शियल ओवर पार्शियल एट xi पार्शियल यू बाई पार्शियल ईटा पार्शियल एट xi बाई पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल ईटा पार्शियल यू बाई पार्शियल ईटा यस पार्शियल ईटा बाई पार्शियल एक्स माइनस पार्शियल यू बाई पार्शियल ईटा जी। आप स्टूडेंट्स देखो कि ये आ गया एट xi एक्स 0, तो दिस टर्म गोज टू 0 एंड ईटा एक्स इज माइनस एक्स, तो माइनस एक्स ये माइनस एक्स ये प्लस एक्स स्क्वायर पार्शियल टू यू बाई पार्शियल ईटा स्क्वायर माइनस पार्शियल यू बाई पार्शियल ईटा जी। ये आ गया मेरे पास पार्शियल टू यू बाई पार्शियल एक्स स्क्वायर की वैल्यू जी। ठीक है। सिमिलरली मैं पार्शियल टू यू बाई पार्शियल वाई की वैल्यू निकालूंगा विच इज नथिंग बट पार्शियल और पार्शियल वाई पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स आई बाई पार्शियल वाई प्लस पार्शियल यू बाई पार्शियल ईटा एंड पार्शियल ईटा बाई पार्शियल वाई जी। अब पार्शियल ईटा बाई पार्शियल वाई बेसिकली इक्वल टू 0 है, तो ये टर्म इक्वल टू 0 हो जाएगी और पार्शियल एक्स आई बाई पार्शियल वाई 1 है, तो वी आर लेफ्ट ओनली विद पार्शियल ओवर पार्शियल वाई पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स आई जी। सो स्टूडेंट्स एक ही पैटर्न में हम चल रहे हैं, एक ही पैटर्न पे चल रहे हैं। ठीक है, कोई इसमें ऐसी बात नहीं, मैं बार बार इसलिए कर रहा हूँ कि आपके लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपकी क्योंकि आप कैमरे के थ्रू आप एजुकेशन ले रहे हो, काफ़ी दूर हो, हमारे साथ कंटेक्ट ना हो, तो आपको हर चीज़ क्लियर हो किस तरह से हम क्या चीज़ कर रहे हैं जी। ठीक है, तो इट्स योर जॉब, इट्स योर ड्यूटी टू सी दीज लेक्चर्स प्रॉपरली जी। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि ओ ये तो समझ आ जाए तो इसको छोड़ दो, तो बाकी चलो अगला लेक्चर पे चलते। ठीक है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप उस चीज़ को सही अंदाज से अंडरस्टैंड नहीं करोगे, छोटी सी मिस्टेक भी आपको ले डूबेगी। ठीक है, तो इसलिए किसी भी चीज़ को लाइट नहीं लेना आपने। सो यहाँ पे फिर पार्शियल एक्स आई और पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स आई एंड देन पार्शियल एक्स आई बाई पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल और पार्शियल एक्स आई ईटा पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स आई and partial eta by partial x, and this is
partial eta by partial y 0, partial xi by partial y 1, or we are left only with this thing ji, or no, there is some minor mistake here. Let's hunt that mistake ji. Kya mistake hai? Yes, I found it. Look, we are taking the derivative with respect to y, but here certainly I change y with x. Why? It should be y here. It should be y here जी. मुझे कैसे फीलिंग आई कि मैंने मिस्टेक किया है जी? मुझे ऐसे फीलिंग आई कि ये मेरे पास पार्शियल ईटा पार्शियल एग्जाइड टर्म बन रही है, जबकि मेरी जो फाइनल फॉर्म है वो पार्शियल 2u बाई पार्शियल ईटा स्क्वायर और पार्शियल 2u बाई पार्शियल एग्जाइड स्क्वायर में बननी चाहिए थी। तो ये इस फॉर्म को रहना चाहिए और इस फॉर्म को आउट होना चाहिए। तो पार्शियल ईटा बाई पार्शियल वाई, देखो ये टर्म ये 0 हो गई, एंड पार्शियल एग्जाइड बाई पार्शियल वाई इज 1, सो दिस इज नथिंग बट पार्शियल 2u बाई पार्शियल एग्जाइड स्क्वायर। ये टर्म आ गई जी। अब इनकी आपके पास जो गिवन पीडीईज थी, गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, मैं यहां भी कर रहा हूं, द गिवन पीडीईज u h x प्लस h स्क्वायर u y y इज इक्वल टू 0। तो u h x ये था h स्क्वायर पार्शियल 2u बाई पार्शियल ईटा स्क्वायर माइनस पार्शियल u बाई पार्शियल ईटा प्लस h स्क्वायर partial 2u by partial xi square, and this is equal to 0, and h square common ले आप, partial 2u by partial eta square plus partial 2u by partial xi square is equal to partial u by partial eta, और look at this, what is h जी? बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखें, ये जो हमने कैलकुलेट किया था, तो यहाँ से हमें h की वैल्यू मिलेगी h square basically nothing but minus 2 eta जी, h square is equal to minus 2 eta जी। सो h square की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें, पहले डिवाइड कर लेते हैं और फिर सब्स्टिट्यूट भी कर दें, तो हमारे पास xi square प्लस पार्शियल 2u ओवर पार्शियल eta square, एंड दिस इज 1 over minus 2 eta partial u by partial eta जी। सो द रिड्यूस्ड फॉर्म जी, ये रिड्यूस्ड फॉर्म आ गई जी। सो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि आफ्टर आज हमने जो कैलकुलेशंस की वो काफ़ी हद तक सिंप्लीफाई होगी, क्योंकि हमारे प्रैक्टिस जो थी वो हमें बता रही थी कि अच्छा ये काम तो ऐसे होता है ऐसे होता है, तो हम अपनी स्पीड को तेज़ कर सकते हैं। मैं बार बार इस चीज़ को फोकस कर रहा हूँ, फोर्स कर रहा हूँ आपको कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे पीडीईज के साथ डील करना मुश्किल हो जाएगा जी। सो कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल जी, जो मैंने जिसके ऊपर मैंने डिस्कस करना था। सो द नेक्स्ट एग्जांपल इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर u x x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर u y y प्लस x u x प्लस y u y is equal to 0 जी। So what is a here? A is 1 plus h square, b is 1 plus y square, and c is no b, बेसिकली b जो होता है वो कोफिशिएंट होता है एक्स वाई का जी, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे b जो है वो 0 है जी, 2b बेसिकली 0 है यहाँ पर, एंड c जो है 1 प्लस वाई स्क्वायर जी। तो जो डिस्क्रिमिनेंट है b स्क्वायर माइनस ए सी, एंड 2b 0 है, तो दिस मीन्स b 0 है, तो ए सी इज इक्वल टू 0 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करके देखूंगा कि कहीं कोई ऐसी एक टर्म भी जो है वो किसी उसकी वजह से कोई नेगेटिविटी तो नहीं आ रही, या कोई इसका साइन तो नहीं चेंज हो रहा। सो दिस इज माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स, आप देखो कि 1 भी पॉजिटिव है
ये भी एवरी वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव एंड एवरी वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर इज पॉजिटिव एंड उनका मल्टीप्लिकेटिव जो टर्म है वो भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये टोटल फिर इस नेगेटिव साइन की वजह से ये लेस देन जीरो हो जाएगा जी, ठीक है। इस नेगेटिव साइन की वजह से ये लेस देन जीरो हो जाएगी जी। सो जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगी यहाँ से जिसको हम डील कर रहे हैं, बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी डिवाइडेड बाय b minus b square minus ac divided by a, and this is equal to b square is 0 minus 0 minus into ac. Minus ac is this in 1 plus x square into 1 plus y square divided by 1 प्लस, ये तो काफ़ी डिफिकल्ट टर्म आ रही है हमारे पास, इसको तसल्ली से देखेंगे। माइनस, इस माइनस साइन की वजह से आयोटा आ गया, आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से अगेन आप इसको देखोगे dy by dx basically nothing but minus iota 1 plus y square divided by 1 plus x square, और इसको मैं लिख सकता हूँ और dy by 1 plus y square is equal to minus iota dx by 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो अब इसकी इंटीग्रेशन जो होगी, अब देखें इंटीग्रेशन आ रही है और इसकी इंटीग्रेशन काफ़ी टफ है। इंटीग्रेशन में आपको हिंट दे देता हूँ, बल्कि हिंट भी देता हूँ और थोड़ी सी साथ एक्सरसाइज भी देता हूँ। देखें हमारे पास एक आइडेंटिटी है, सबसे पहले तो हम लिखते हैं डी वाई बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आयोटा माइनस डी एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसको जो मैं सॉल्व करूँगा तो देखें ये जो इक्वेशन बनेगी, लेफ्ट साइड में एक इंटीग्रल है मेरे पास, यहाँ पे मैं इसको रोकता हूँ। तो लेट मैं इस इंटीग्रल को सॉल्व कर रहा हूँ डी जी ओवर 1 प्लस जी स्क्वायर जी, और इसका रिजल्ट फिर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूँगा जी, ठीक है। तो मेरे पास एक आइडेंटिटी है, मैं सारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूँगा क्योंकि ये बेसिक इंटीग्रेशन है और आई होप कि आपको ये बेसिक इंटीग्रेशन आती होगी। मैं यहाँ पे आपको जस्ट थोड़ा सा हिंट देता चलूँ कि आप इसको कैसे सॉल्व करोगे जी। मुझे पता है कि आप लोग बड़े कुछ लोगों ने बीच में गैप दिया होगा, वो उसके बाद दोबारा स्टडी की तरफ आए होंगे, तो उन सब स्टूडेंट्स को मेरी ये सजेशन है कि एटलीस्ट जो बीएससी की हार्वर्ड एंटन बहुत अच्छी बुक लिखी हुई है उसने, ठीक है। थॉमस फिनी की बड़ी अच्छी बुक है, वो आप देख लो। सोक्रासी की बुक है, और अगर ये इनमें से कोई भी बुक नहीं देखना चाहते या आपके पास अवेलेबल नहीं है तो पाकिस्तानी ऑथर है एसएम यूसुफ, उसकी बुक देख लो, वो भी बड़ी अच्छी बुक है, और स्पेशली ऑन इंटीग्रेशन एंड डेरिवेशन जी। उसने ऑलमोस्ट हर एंगल को कवर करने की कोशिश की है। मैं उसको उसकी पब्लिसिटी नहीं कर रहा, मैं जस्ट ये कह रहा हूँ कि उस बुक में काफ़ी अच्छी इंटीग्रेशन है। हावर्ड एंटन की बुक है, बड़ी अच्छी बुक। सोक्रासी की बुक अगर आपके पास नहीं है तो आप लाइब्रेरी से ले सकते हैं, या 300-400 रुपये की मिल जाएगी। और थॉमस फिनी की बुक, अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो अपने पुराने नोट्स, अपनी पुरानी किताबें उठाएं तो वहाँ पे आपको एक एसएम यूसुफ की बुक मिलेगी, तो वो उसमें आपको इंटीग्रेशन और डेरिवेशन उसमें हुई हुई है बड़ी अच्छी, आप वो सारी देखेंगे। सो कम टू दिस पर्टिकुलर एग्जांपल डी जी ओवर 1 प्लस जी स्क्वायर। तो इसमें मैं एक आइडेंटिटी मुझे पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है जी। और अगर मैं कॉस से डिवाइड कर दूं तो ये टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस 1 सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है जी। और अगर मैं इसको देखूं, किस तरह से देखूं,
Yes, if I choose, let's say this is not h, this is theta, because h we already used. This is theta. So let z is equal to tangent theta. तो dz क्या आ जाएगा, secant square theta d theta. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, dz की वैल्यूज secant square theta d theta डिवाइडेड बाय, ये इसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन, 1 प्लस tangent square theta and this thing, and this is equal to secant square theta d theta over 1 plus tangent square theta is secant square theta, and square रूट खत्म करेंगे तो मेरे पास secant theta बचेगा, और ये secant theta इस a टर्म को खत्म कर देगा, तो मेरे पास जो इंटीग्रल बनेगा वो होगा secant theta d theta, और इसका जो इंटीग्रल है वो होगा। सो स्टूडेंट्स आप देखें कि ये secant theta d theta आ गया, और ये जो सवाल है ये मैंने एक गलत इंटीग्रल चूज कर लिया। मेरा ख्याल है कि मैं आपको ये सारा इंटीग्रल ही सॉल्व करके बता देता हूँ जी, ठीक है। secant theta इंटीग्रल d theta जी। सो लुक एट दिस, दिस इज secant theta d theta। अब मैं अगर इसको स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल्स होते हैं, और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ secant थीटा प्लस tangent थीटा के साथ और डिवाइडेड बाय इसी टर्म के साथ कर दूं, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी secant square थीटा प्लस secant थीटा tangent थीटा, और tangent थीटा रूल में पहले लिख लूँ प्लस secant थीटा। तो आप देखो कि secant थीटा का जो डेरिवेटिव है वो secant थीटा tangent थीटा होता है, और tangent थीटा का जो डेरिवेटिव है वो secant square थीटा होता है। सो दिस इज बेसिकली नथिंग बट tangent ऑफ थीटा प्लस secant ऑफ थीटा, log ऑफ tangent ऑफ थीटा प्लस secant ऑफ थीटा प्लस सी। लेट्स से हम यहाँ पे इसको एज इट इज रखते हैं, ट्रांसफर ऑफ इंटीग्रेशन में फिलहाल नहीं लिख रहा जी, ठीक है। जबकि मैंने सब्स्टिट्यूट क्या किया था, मैंने कहा था कि लेट्स से z इज इक्वल टू tangent थीटा जी, तो secant थीटा किससे इक्वल था जी, 1 प्लस tangent square थीटा जी। सो 1 प्लस tangent square थीटा और secant थीटा, तो secant थीटा आ गया 1 प्लस z स्क्वायर जी, ठीक है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें tangent थीटा की वैल्यू और उसकी वैल्यू, तो ये आपके पास इंटीग्रल आ गया 1 प्लस z स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स ये इंटीग्रेशन बेसिकली हमारा टॉपिक नहीं है, ठीक है। इंटीग्रेशन हमारा उससे हमें लेना, हम जस्ट उसे यूज करते हैं। ये एक इंटीग्रल आ जाता है जो थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप था, तो वो मैंने कर दिया। अब कोई ऐसा सवाल जिसमें जो मैंने यहाँ पे नहीं आता और आपको पेपर में आपको आ जाता है और उससे इंटीग्रेशन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, तो दैट इज़ नॉट माई फॉल्ट। आपको अपनी इंटीग्रेशन जो है वो बेहतर करनी होगी, ठीक है। सो जब आपके पास ये आ गया, तो जो मेरी प्रीवियस इक्वेशन थी जिसको मैं लेके चला था, dy over 1 plus y square and is equal to minus iota dy dx over 1 plus h square जी। तो दिस इज समथिंग लाइक दैट। इसको मैं यहाँ पे लिख लूँ dy over 1 plus y square, और ये किससे इक्वल था जी, ये मैंने प्रूव किया था 1 over 1 plus z square dz के इक्वल जी। तो अब z की बजाय जस्ट y है, तो इससे कोई इतना वो इशू नहीं है। आयोटा dx बाई, एंड आई थिंक देयर इज माइनस साइन इज आल्सो देयर, माइनस आयोटा dx ओवर 1 प्लस h स्क्वायर, एंड इसको जब मैं इंटीग्रेट करूँगा तो दिस इज नथिंग बट log ऑफ y प्लस 1 प्लस y स्क्वायर। और अगर आपको इसका इंटीग्रेशन आती है आपको, फॉर एग्जांपल आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी है कि आप डायरेक्ट लिखते हुए कर दो। मैंने तो इसलिए इसको प्रूव किया कि मैं तो ये समझ रहा हूँ कि आपको नहीं आ रही, ठीक है। तो आपको मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ ना, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे इंटीग्रल को मैंने प्रूव कर दिया। तो अगर आप इसको आती है आपको उसकी इंटीग्रेशन, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। देयर इज नो नीड टू डू दिस होल
कैलकुलेशन, देयर इज नो नीड टू डू दिस होल कैलकुलेशन, ठीक है। आयोटा लॉग ऑफ x प्लस 1 प्लस x स्क्वायर एंड दिस इज लेट्स से ट्रांसफर ऑफ इंटीग्रेशन। तो जो मेरे पास c आया वो आ गया लॉग ऑफ y प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर एंड प्लस आयोटा लॉग ऑफ h प्लस 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है जी। ये आ गया आपके पास। तो लेट्स से मैं इसको फंक्शन फाई ऑफ एक्स वाई मानता हूँ, तो दिस इज नथिंग बट लॉग ऑफ y प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर एंड प्लस आयोटा लॉग ऑफ x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि मैं इमेजिनरी टर्म को ईटा लेता हूँ और जो मेरी रियल टर्म है उसको मैं एग्जाई लेता हूँ, तो इससे फिर जो मेरी कैरेक्टरिस्टिक्स बनेगी वो फिर कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैंने इवॉल्व की है, तो ये मेरे पास दो टर्म्स आ रही एग्जाई। सो एग्जाई मेरे पास आ रही लॉग ऑफ y प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर, y प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर एंड ईटा मेरे पास आ गया लॉग ऑफ x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ऑफ कोर्स ये ब्रैकेट क्लोज, तो एग्जाई x is 0, there is no h here, and eta h is 1 over h plus square root of 1 plus h square। तो इसका डेरिवेटिव h का डेरिवेटिव 1 प्लस इसका डेरिवेटिव 1 over 1 plus h square, ठीक है। एंड h is also here because 2h, तो उसका डेरिवेटिव h आ जाएगा। तो एलसीएम लेंगे आप h प्लस 1 प्लस h स्क्वायर इंटू 1 प्लस h स्क्वायर प्लस h डिवाइडेड बाय 1 प्लस h स्क्वायर एंड दिस इज, ये होल टर्म ऊपर वाले इस टर्म के साथ कैंसिल हो जाए, 1 over 1 प्लस h स्क्वायर, दिस इज योर ईटा h जी। सो सिमिलरली एग्जाई y, ये भी इसी की कॉपी हो रही जी, जस्ट वेरिएबल चेंज हो रही है, तो मैं यहाँ पे जस्ट इसका ये डेरिवेशन ले दूंगा 1 over 1 प्लस वाई स्क्वायर जी, ठीक है। और ईटा y मस्ट बी 0 जी। सो व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, आई हैव टू रिड्यूस दिस इक्वेशन 1 प्लस h स्क्वायर, मैं दोबारा लिख रहा हूँ u(h) प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर u(y) प्लस h(u(h) प्लस y(u(y) इज इक्वल टू 0। सो आप देखिए हमें u(h) को भी ट्रांसफॉर्म करना है u(y) को भी, तो मैं पहले u(h) और u(y) कैलकुलेट कर लेता हूँ। पार्शियल u बाई पार्शियल h इज नथिंग बट पार्शियल u बाई पार्शियल एग्जाई एंड पार्शियल एग्जाई बाई पार्शियल h प्लस पार्शियल u बाई पार्शियल ईटा एंड पार्शियल ईटा बाई पार्शियल h। सो स्टूडेंट्स, आप पार्शियल ईटा बाई पार्शियल h आप देखें तो ये मेरे पास टर्म आ गई और पार्शियल एग्जाई बाई पार्शियल h 0 हो गया, तो ये फर्स्ट टर्म गोज टू 0 एंड दिस गिव्स मी नथिंग बट 1 over 1 प्लस h स्क्वायर पार्शियल u बाई पार्शियल ईटा जी, दिस इज पार्शियल u बाई पार्शियल h आ गया जी। सिमिलरली पार्शियल u बाई पार्शियल y, partial u by partial xi and partial xi by partial y plus partial u by partial eta and partial eta by partial y, and this is equal to nothing but partial xi y, this thing. So this is 1 over 1 plus y square root partial u by partial xi, and this term goes to 0 because eta y is 0. So partial u by partial y is this thing जी, and partial u by partial h is this thing जी, ठीक है। तो अब मैं इसको डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करूंगा u(h) एंड u(y)y, उसके लिए मैं ये मैंने फाइंड आउट करना है। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ। तो पार्शियल टू u by partial h square is equal to partial by partial of h, partial u by partial of h। तो partial u by partial of h
अभी भी कैलकुलेट किया है 1/1 प्लस एच स्क्वायर पार्शियल यू पार्शियल ईटा, तो ये आ गया पार्शियल ओवर पार्शियल ऑफ एच 1 प्लस एच स्क्वायर पार्शियल यू बाई पार्शियल ईटा जी। और इसका जो डबल डेरिवेटिव हो इस पे देखें कि u इंटू वी लगेगा, पहले इसका डेरिवेटिव और फिर इसका, लेट्स से ये फंक्शन एज इट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू पार्शियल ओवर पार्शियल ऑफ एक्स पार्शियल यू बाई पार्शियल ईटा प्लस प्लस partial u by partial eta and derivative of this thing partial over partial x 1 plus x square। मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ माइनस हाफ की, ताकि जब मैं इसको करूँ तो आपको समझ आए थोड़ी बेहतर अंदाज से जी। 1/1 plus x square, this is partial over partial xi और partial y partial x plus partial over partial eta partial u over partial eta and partial xi over partial eta over partial hg। और इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो होगा प्लस पार्शियल u by partial eta into -1/2 1 plus h square -3/2 and 2hg। So students, partial xi by partial hg वैल्यू देखें, पार्शियल एच बाई पार्शियल एच 0 थी और पार्शियल एच बाई पार्शियल वाई की वैल्यू 1/1 प्लस वाई स्क्वायर थी जी। नो, पार्शियल ईटा बाई पार्शियल एच की वैल्यू, पार्शियल ईटा बाई पार्शियल एच की वैल्यू थी 1/1 प्लस एच स्क्वायर जी। सो 1/1 प्लस एच स्क्वायर this is equal to partial 2u over partial xi partial eta and partial xi और partial h की वैल्यू हमने देखी थी 0, so this is 0 plus partial 2u over partial eta square and this is eta over h की वैल्यू थी 1/1 plus h square root and this is minus term minus h, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाए, h over 1 plus h square power 3/2 partial u by partial eta जी। सो सिंप्लीफाइड करेंगे हम इसको, तो ये बन जाएगा 1/1 plus h square partial 2u by partial eta square minus h over 1 plus h square 3/2 partial u by partial eta जी। So this is partial 2u by partial h square। So similarly we are interested to find out partial 2u over partial y square। तो अगली स्लाइड पे हम चलते हैं। partial over partial y partial u by partial y, this is equal to nothing but partial 2u over partial y square। तो partial over partial y partial u over partial y की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी 2 स्लाइड्स पहले। दिस इज 1/1 plus y square partial u by partial xi जी। 1/1 plus y square partial u by partial xi and अगेन यहाँ पे u into v फार्मूला लगेगा, तो 1/1 plus y square partial over partial y partial u over partial xi plus this square root as well there जी, plus partial u by partial xi as it is and derivative of partial over partial y 1/, इसको मैं अगर इस तरह लिख लूँ 1 plus y square minus 1/2 जी। तो ये मेरे पास आ जाएगा 1/1 plus y square into partial over partial xi partial u by partial xi partial xi by partial x partial xi by partial y, because we are taking derivative with respect to y, plus partial over partial eta partial u over partial xi partial eta over partial y प्लस माइनस यहाँ से मेरे पास y ओवर
1 plus y square power 3/2 एंड पार्शियल u बाई पार्शियल xi आ जाएगी। पार्शियल xi में पार्शियल y की वैल्यू आई थिंक, मैं दोबारा जाता हूँ, पार्शियल xi में पार्शियल y की वैल्यू 1/1 प्लस वाई स्क्वायर था जी, और उसकी वैल्यू 0 हो जी, ईटा y की वैल्यू जी। सो ये टर्म 0 हो जी, और ये टर्म बची 1/1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1/1 प्लस वाई स्क्वायर पार्शियल 2u बाई पार्शियल xi स्क्वायर प्लस माइनस y/1 प्लस वाई स्क्वायर 3/2 partial u by partial xi, and on simplifying this thing we are left only with 1/1 plus y square partial to u by partial xi square minus y/1 plus y square 3/2 partial u by partial xi। This is partial to u by partial y square। इनकी वैल्यूज इसको मैं, ये पार्शियल टू यू बाई पार्शियल वाई स्क्वायर है और पार्शियल टू यू बाई पार्शियल xi की वैल्यू, और इन सब की वैल्यूज 4 वैल्यूज आई मेरे पास। लुक एट दिस, ये वैल्यू आ रही, लेट्स से बल्कि शुरू से चलते हैं। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड लेट्स से दिस इज 4। सो the given partial differential equation is basically 1 plus x square u xx plus 1 plus y square u yy plus x u x plus y u y is equal to 0। तो अब यहाँ पे हम u xx की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। u xx की वैल्यू अब मुझे ज़बानी याद तो नहीं है ना, तो मैं यहाँ से दे दूँगा 1 plus 1 over x square partial u partial eta square एंड सॉरी, एक्चुअली मेरे नोट्स पे कैलकुलेशन थोड़ी डिफरेंट अंदाज से हुई है। सो 1/1 प्लस एच स्क्वायर पार्शियल टू यू बाई पार्शियल ईटा स्क्वायर माइनस h/1 प्लस एच स्क्वायर पावर 3/2 पार्शियल u बाई पार्शियल ईटा। ईटा सिमिलरली अगली जो टर्म आएगी वो मैं यहाँ से डायरेक्टली लिख सकता हूँ सिमेट्री की वजह से 1/1 प्लस वाई स्क्वायर पार्शियल टू यू ओवर पार्शियल xi स्क्वायर माइनस h/1 प्लस एच स्क्वायर 1 माइनस y/1 प्लस वाई स्क्वायर 3/2 पार्शियल u बाई पार्शियल xi जी, ठीक है, एंड प्लस h into uh जी, uh is nothing but 1/1 plus h square partial u by partial eta 1/1 plus h square partial u by partial eta plus y into 1/1 plus y square partial u by partial xi जी, ये आ जाए इक्वल टू 0। सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम जब, दिस इज पार्शियल टू यू बाई पार्शियल ईटा स्क्वायर माइनस h/, look at this power 1, this is 1.5 3/2, so it gives me only half 1 plus h square partial u by partial eta plus this term cancels this term partial to u by partial xi square minus y/1 plus y square partial u by partial xi, and then this term is plus h over 1 plus h square partial u by partial eta, then plus y/1 plus y square partial u by partial xi is equal to 0 जी। सो आप देखो कि ये टर्म इस टर्म के साथ कैंसिल आउट हो रही, ये टर्म इस टर्म के साथ कैंसिल आउट हो रही, तो वी आर लेफ्ट ओनली विद पार्शियल टू यू बाई पार्शियल xi स्क्वायर प्लस पार्शियल टू यू बाई पार्शियल ईटा स्क्वायर एंड इक्वल्स टू 0 जी। सो दिस इज द रिड्यूस्ड
canonical form of this situation. Let's say this situation is A जी. तो आप ये देखें कि कितनी डिफिकल्ट इक्वेशन थी. 1 प्लस एच से कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 1 प्लस वाई से, और आप फिर देन एच यू एच देन प्लस वाई यू वाई. जब आपने इसको रिड्यूस किया तो यू आर इन अ वेरी इजी सिचुएशन जी. बहुत आप आसानी के साथ आप अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो. और इस फॉर्म में वैसे लेप्लास इक्वेशन कहते हैं एग्जाइटा में. इंशाल्लाह जब हम आगे मॉडलिंग करेंगे तो हम मॉडलिंग मीन्स नॉट ऑन द रैप बट इक्वेशन मॉडल करेंगे. फिजिकल एक प्रॉब्लम लेंगे और उसको इंटरप्रेट करेंगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में, लाइक इन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस में. सो दिस इज योर पार्शियल the reduced canonical form of the given equation जी, and this is our goal जी. So students आपने देखा कि आपने अपनी दोनों पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को इसको और इसको किस तरीके से हमने कैनोनिकल फॉर्म में रिड्यूस किया और हमारे पास एक स्पेशल फॉर्म आ गई जो विच इज़ वेरी सिंपलेस्ट में कहूँगा. ठीक है, सिंपलर फॉर्म इस इक्वेशन की, इसको हमने उसको इजी फॉर्म में हमने ट्रांसफॉर्म कर लिया कैनोनिकल फॉर्म में, और उसको सॉल्व करना अब इजी है बज़ाहिर इसको सॉल्व करने के लिए. ठीक है. सो समरी ऑफ द टुडेज लेक्चर is we basically focus on the elliptic equations and we did some examples and I hope कि आप लोग जो मैंने 2 एग्जांपल्स दिए और एग्जांपल में एक इंटीग्रल इन्वॉल्व हो गया जिसकी वजह से हमारा थोड़ा टाइम भी लग गया उसके ऊपर. तो आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ये दोनों आनी चाहिए. कोई पता नहीं जैसी पर कोई मुश्किल सी एक इक्वेशन आ जाए देन आप क्या करोगे. ठीक है, तो उसके लिए फिर आपकी इंटीग्रेशन मजबूत होनी चाहिए, डिफरेंशिएशन मजबूत होनी चाहिए. ठीक है. सो दिस इज द समरी ऑफ टुडेज लेक्चर. कल हम स्पेशल टाइप ऑफ इक्वेशंस पढ़ेंगे जिसमें जो फॉर सर्टेन रीजन्स वो एलिप्टिक होती हैं और फॉर सर्टेन रीजन वो रीजन्स ऑफ एक्स वाई प्लेन वो आपकी पैराबोलिक होती हैं या आपकी हाइपरबोलिक होती हैं. ठीक है, तो कल हम फोकस करेंगे उनके ऊपर और साथ हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे. तो उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज़.